जिसका रंग बोलने का जो स्वभाव है यूरोपीय देश अमेरिकी देशों की तरह है, तो हमने उसे प्रमाण दे दिया कि आप कहीं भी घूमें किसी भी लोगों से। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। रंग के आधार पर किसी को किसी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए, लिबर्टी नहीं होना चाहिए, उसको भी कानून के रास्ते को फॉलो करना चाहिए। अगर ये हुआ है तो बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और चूंकि अब वो कानून के दायरे में है, कानून से बच नहीं सकता है, कानून अपना काम कर रहा है। और उसके खुलासे के बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं। और एक बड़ा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ था अमेरिका और भारत के संबंधों में कारगिल युद्ध के दौरान, उस पैराडाइम शिफ्ट में कंसोलिडेशन का फेज आ रहा है। ये रिलेशनशिप दोनों के बड़े मजबूत हो रहे हैं। ओसामा के मरने के बाद ओबामा जो प्रशासन जिस तरीके से उसका मोह भंग पाकिस्तान से हुआ है और भारत पर रिलाई कर रहा है, ये बात साफ दर्शाता है कि किस तरीके से अमेरिका भारत की तरफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए हुए है। Taking a look at the big picture, many people would argue here today. A very senior analyst, a very senior journalist whom I was speaking to a few days back, he told me that there was very interesting statement that he used. He said, Pakistan's geography is its insurance policy. You know, America needs Pakistan very badly in Afghanistan. So long as the security situation in Afghanistan does not stabilize, America needs the support of Pakistan there, probably for this, not just for Afghanistan, but in the entire AfPak region. So many people are arguing that even though a lot of significant things are coming up in the Chicago trial, it will not lead to a major shift in US-Pakistan relations. It will only be a facade, a kind of show for the international community. But back-channel diplomacy, as far as back-channel diplomacy, bilateral relations are concerned, US and Pak will remain to be as close as ever. Do you also subscribe to this view? No, it's an opinion. I can see it, but the reality, the real picture is something different. What you have said, it was true during the Cold War, when US was thinking that Pakistan is a requirement. Now things have been changed. Power block politics has been finished. Now there is no power. The whole power remains US. In fact, it is playing a world police role. So I don't think US is requiring Pakistan. Right, the moment they do not require Pakistan as a supporter at all. They are now concerned shifted to China, how to handle China. And since India has a huge market, so they cannot ignore it. They are bound to be close with India. It's confirmed. So you see US moving proactively against Pakistan as far as the terror question is concerned in the time to come? Absolutely. They will take more harder step in the coming days, and they will be doing it because they have to show the face in their country as well. Obama is facing election next year. So they have to say something, yeah, we have done something to tackle the terrorism in the international community. अनिल जी, बात अमेरिका और भारत के रिश्तों पे ही आपने की, तो जो कल आंतरिक सुरक्षा पे सहयोग पे जो होने वाली बैठक है उस पर ही बात कर लें। अमेरिका में अटैक होता है तो वहाँ एक अलग मंत्रालय बना दिया जाता है, आंतरिक सुरक्षा मंत्री। हमारे यहाँ उनका एक अटैक होता है, उसके बाद चीज़ें उन्होंने पटरी पे ला दी हैं, उसके लिए उन्होंने मैकेनिज्म बनाया। हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन आता है, हम आतंकवाद भी परिभाषित उस चीज़ को कर लेते हैं, जैसे पाकिस्तान या और देशों से हमारे पर क्या आतंकवादी आते हैं तो उसे आतंकवादी घटना कहते हैं। हमारे माओवादियों का भी एक अलग आतंकवाद है। हमारे देश में कुछ इस तरह का ना तो हार्ड कोई कदम उठाया जाता है, ना एक मंत्रालय अगर गठित करना पड़े, इस तरह के कुछ लगता है आपको भारत में भी कुछ होने चाहिए कदम? देखिए, आपको मालूम है कि वी आर सॉफ्ट स्टेट एंड आवर डेमोक्रेसी इज नॉट मैच्योर डेमोक्रेसी लाइक अमेरिका। ऑफ कोर्स हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो अमेरिका है। हम अभी इवॉल्विंग स्टेज में हैं, हमारे पास अभी उतना साधन ही नहीं है, हमारे इक्विपमेंट्स अभी उतने अच्छे नहीं हैं। स्टिल वी आर इन प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग इट। सो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अमेरिका के सुरक्षा व्यवस्था के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल हाईटेक में है। उनके पास ये मेट्रो रेलवे 150 साल पहले आ गई थी, हम कहाँ हैं? लेकिन इच्छा शक्ति तो लाई जा सकती है ना। इच्छा शक्ति दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स ए सॉफ्ट स्टेट। इसका मतलब ही यही है कि इन मुद्दों पे हमारी सरकार गर्म तरीके से पेश नहीं आ सकती है। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति हो, सरकार कंट्रोल कर लेती है। सरकार के पास एनॉर्मस पावर है, सरकार किसी चीज़ को डिमोलिश कर सकती है। इच्छा शक्ति की कमी है, इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। इसको मैंने दूसरे तरीके से कहा कि वी आर ए सॉफ्ट स्टेट।
अनिल जी, हम दूसरी खबर पे बढ़े। इंडो अफ्रीका जो अभी शिखर सम्मेलन हुआ है, वहाँ भारत के लिए कई खुशखबरियाँ भी आई हैं। परसों वहाँ पे डिनर में सम्मेलन खत्म होने के बाद जिसका हम इंतजार करते हैं वहाँ वो बात सुनने को नहीं मिली, लेकिन डिनर के समय हमें वहाँ पे अफ्रीकी देशों से एश्योरेंस मिला है कि यूएन में परमानेंट सीट पर वो भारत की दावेदारी का समर्थन कर सकते हैं। और उसके बाद आतंकवादियों पे भी जो उन्होंने वक्तव्य आया है कि आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती है उसके लिए ज़मीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस पूरे शिखर सम्मेलन को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, अफ्रीकी यूनियन को संबोधित करना और वहाँ पे इन तमाम तरह की बातों का होना एक सार्थक प्रयास है। जिस तरीके से आधुनिक समय में संयुक्त राष्ट्र संघ को डेमोक्रेटाइज करने की बात की जा रही है, उसको और लोकतांत्रिक बनाने की बात की जा रही है, भारत को सुरक्षा काउंसिल में रखने की बात की जा रही है, अफ्रीकी कंट्रीज इसका समर्थन करते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे और भी बातें की गई हैं, समुद्री डाकुओं से किस तरीके से निपटा जाए, जो एक भारत के लिए भी सरदर्द है, उस पर भी बातें की गई हैं। और प्रधानमंत्री ने वहाँ इससे भी महत्वपूर्ण बात की है कि IMF का जो चीफ है वो किसी कारणों से उसको हटा दिया गया है। तो अब प्रधानमंत्री का ये मानना है कि उस संस्था में भी डेवलपिंग कंट्री का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि डेवलपिंग कंट्री बहुत इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई हमने इसको ज़मीन दिया है, सबसे ज़्यादा पैसा हमारा लगा है और आप कह रहे हैं कि अब अध्यक्ष का पद हम आपको दे दें। लेकिन भारत की दावेदारी साइलेंटली मोंटेक सिंह अहलुवालिया को वहाँ भेजने की है। हालांकि सिंह साहब वहाँ जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात आ रही है और प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ वहाँ किया है। अगर हम इंडो अफ्रीका में दोबारा से आए, एक चीज़ जो बड़ी रोचक निकल के आई है कि कहीं ना कहीं जो भारत और चीन के बीच में जो एक प्रतिस्पर्धा आजकल चल रही है वो वहाँ पे भी देखने को मिली है। इथोपिया के उस शहर में अफ्रीकी यूनियन का जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से चाइना बना रही है। भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, काफ़ी प्रभावशाली रहे वो। साथ में उन्होंने 5 या 6 अरब डॉलर की मदद की भी उन्होंने ऐलान किया है। तो आपको लगता है कि भारत और चीन की जो प्रतिबद्धता है वो भी अब बड़े परिदृश्य में निकल के आ रही है, खासतौर से तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनको अपने पक्ष में करने की जो होड़ मची हुई है? देखिए, जाहिर है कि भारत की तरह चीन भी एक बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, लोकतांत्रिक देश है और बढ़ता हुआ देश है। वो अपने वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगा। चीन भी बाज़ार की खोज में निकला हुआ है। चीन के प्रोडक्ट के लिए भी बाज़ार चाहिए, इसलिए चीन अपनी हेजेमनी को बनाने की कोशिश करेगा। और चीन कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा ताकतवर तो है ही, जनसंख्या में ताकतवर है, एटॉमिक एनर्जी में ताकतवर है, चीन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं हमसे तो उसका वजन ज़्यादा है ही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उसके समकक्ष पहुँचें। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व की गरिमा है कि इसको कितने आगे तक नेतृत्व ले जाता है। But it is also being said that African nations have greater respect for India's democratic traditions, since that is something that they really look forward to. In spite of the speed at which projects move or decisions are taken in China, the African nations have more have more respect for India's democratic traditions. But on that note, that's all we have time for in this edition of Perspective. So thank you so much, Mr. Singh, for joining us here. Thank you so much. Time for us to slip into yet another break. When we come back, we'll talk about today's major business stories.